So, paper was for 180. Kids scored great marks. Problem was lack in clarity of the subject and imagination. See, before you had decided that we'll write a test and all, already पता था मेरे को कि outcome will be what. That is why I had messaged in prior only that don't compare the marks what you get. It doesn't matter. Purposely I gave such a paper because I wanted to bring this day. This day I wanted to bring between me and you. The reason I'll tell you. See, boss, people who are preparing for competitive, they might be attending, few people might be attending, few people might not be attending the class with me. That is fine. What is my point? My point is that people across the board on a broader view, India, Belgaum छोड़, India में and all, जैसे हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गलत बात नहीं है, बट गलती किधर है? The amount of dedication and the involvement required and the approach toward the subject जो commitment चाहिए, that is missing in the kids. That is my problem. That is why I wanted to show this day. See, first thing I definitely agree, here Janak is there, this Chinmay, Khush, every individual's intellectual level will not be same. So let's not compare कि किसके पास ज्यादा ब्रेन है, किसके पास कम ब्रेन है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना, मैं अगर मेरा केस लेता है मेरे कॉलेज डेज के बारे में, इफ आई थिंक ऑफ दैट, आई वॉज नॉट ग्रेट बाय ब्रेन्स, बट आई वॉज अ मेहनती बच्चा. ट्रस्ट मी, व्हाट खुश टुडे इज रियली ट्रू. The way Mr. Janak questions, I was never that. Trust me, I was never that way what I am. Yeah, he questions and I appreciate it. Sometimes I shout him also. That's fine. But still he doesn't stop asking questions. That is a good character he has. है कितनी बार बोला है ना, तो भी पूछता है, and it's okay. Boss, it's okay. Because that attitude only will help you in coming days. And feel shameless to ask. Feel shameless to ask. Then only you will learn. कभी अगर टीचर लोग का बीपी आउट होता है, ठीक है, इधर से सुनने का उधर से काटने का, ज्यादा माइंड करने का नहीं. टीचर लोग के बीपी को आउट हुआ तो ब्लड प्रेशर ऐसा ही रहता है, दिन भर चलता रहता है वो, तो कभी कभी बीपी आउट होकर के 4 गाली भी डालेगा टीचर. दैट्स फाइन. पॉइंट इज, होशियार आदमी होना ब्रेन वाइज जरूरी नहीं है तो ही कॉम्पिटिटिव क्रैक होगा. यू शुड बी and learn to be disciplined in life. Discipline in terms of timetable and schedule. Discipline in revising the formula. Approach towards understanding the right concept. अगर वो मिसिंग है तो सब जगह प्रॉब्लम है. मैं बार बार हर दिन जेई प्यू2 बच्चों को भी बोल रहा हूं, तुम्हारे को भी बोल रहा हूं, तुम्हारा मेहनत कभी रंग नहीं लाएगा अगर मेहनत गलत दिशा में है. Effort should be in the right direction. And that is why I want to make this session today. What problem is, I'll tell you. I will exactly tell you where the problem lies. When you were in 9th and 10th, it was a restricted syllabus. A limited edition. 3 चैप्टर पढ़े, वही आया, पार पढ़ा, डन बॉस. फिर SA2 आया, whatever, SA1, SA2 फाइनल हो गया, डन बॉस. And the subject didn't involve the depthness, the kind of depthness this 11th and 12th what it shows. So first major hurdle, I feel, the level of imagination, the difficulty takes a big gap between your 10th and your 11th. And बच्चा उसको underestimate करता है कि ठीक है यार 10th हो गया, साला 11th 12th भी कर ही लेंगे. That attitude will kill.
That is the first problem. Because it is very difficult initially to understand the subject itself because the terminologies are active. If you want to do straight line and plane ke problems, you first have to do differentiation integration. You first have to study allied angles of trigonometry. You first have to do vectors of mathematics, which is a part of syllabus in 12th standard. But we have to teach, then we can teach competitive. Otherwise it is not possible to teach. And that is what is hitting you people hard. Second part, what I feel is that your imagination of the subject. मैं नहीं बोलता कि तुमको सब्जेक्ट नहीं आता है, तुम सब्जेक्ट पढ़ते भी हो. I solve the problem, you will get the answer. I give the question, you will get the answer. ठीक है. Problem किधर है? The moment we get the answer, you people stop thinking about it. You don't give a thought. You don't really think. हाँ, इतने से फेंका. I'll give you one simple example. Suppose a ball is thrown with the initial velocity of 19.6 meters per second. Solve किया, we do. हाँ, then what is the time taken? Or what at the highest point? At the highest point. What is the time taken at the highest point? You will do, sir, at the highest point. This is concept. At the highest point, velocity is 0. Oh, your brain will tell. Okay, 0 sir, हो गया. मतलब final velocity 0 है. Body को लो, body को throw करो. Initial velocity 19.6 है. इधर तक गया. This is the height. Here final velocity is 0. Okay, sir, there are basic equations of motion. Sir, use that equation. V is equal to U plus AT. A becomes G. प्लस अगर ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा. And then you do 0. Then you do U. Okay, then U was 19.6 minus 9.8 T. ये इधर गया. सर 9.8 T into 19.6. सर कटिंग किया, 2 आया. T is equal to 2 सेकेंड आ गया. इसने इसको मार डाला, हो गया 2 सेकेंड. आंसर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो गया. बॉस रुक, गलत है, दिस इज रॉन्ग. योर मेमोरी सिस्टम शुड स्टार्ट फीडिंग डेटा नाउ. ये प्रॉब्लम खत्म हुआ, तेरा काम खत्म नहीं हुआ. गलत. इधर बच्चा चुपता है. क्यों? देख, नाउ यू स्टार्ट डेवलप. इफ यू थिंक ना हाउ टू थिंक. अच्छा, if you throw with 19.6 meter per second, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 होगा. 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 होगा. अभी तेरे ब्रेन ने एक डेटा को याद रखा. नेक्स्ट टाइम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स वेयर 19.6 इज इन्वॉल्व्ड, माय ब्रेन विल टेल 2 सेकेंड आएगा टाइम. ये एक फीडिंग सिस्टम हो गया. बोलते इमेजिनेशन क्रिएट हुआ, एक फीडिंग सिस्टम दिमाग में हो गया. तो नेक्स्ट टाइम कभी आधा फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम देयर, सम डेटा कम्स 19.6, फर्स्ट थिंग योर ब्रेन शुड ट्रिगर. टाइम 2 सेकंड आता है अगर वर्टिकली फेंका तो. दैट इज वेयर इट विल हेल्प यू. बॉस, देयर वर लास्ट टेस्ट में कल के, बॉस, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम. इफ यू सी द सॉल्यूशन व्हाट आई सेंड यू, देयर वाज वन कॉमन इक्वेशन and people texted me, sir ये इक्वेशन कैसा, and it was shocking to me. मैं बोला यार भाई कैसा है, how can you ask this question? I'll tell you what, see S is equal to ut plus, it is very silly, देखने में यार घटिया लगता है यार, ये तो मालूम ही था, you will tell, but the problem is what, वो सोचने का तरीका, वो प्रॉब्लम है. देख मैं बताता हूँ. S is equal to ut plus half gt square. एक 4-5 क्वेश्चन थे कल के टेस्ट में जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था और डिस्प्लेसमेंट को हमने हाइट बोला था, और इधर हाफ जीटी स्क्वायर था. ये इधर गया, एंड यू गॉट 2h by g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये t इधर आया. कितने सारे प्रॉब्लम्स अगर तू देखे तो इस फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट थे. अभी बच्चा का प्रोसेसिंग है ही नहीं. हमने क्लास में बोला रहेगा तो ये बच्चा प्रोसेस नहीं करता है. टाइम का फॉर्मूला
2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जी, ओके 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जी का रूट, ये ट्रिगर करना है, याद रख। नेक्स्ट टाइम हाउ टू थिंक, सर इफ अ बॉडी इज का इनिशियल वेलोसिटी 0 और डिस्टेंस पिक्चर में आ रहा है सर, तो टाइम इज रूट ऑफ 2g बाय h, 2h बाय g। समझा मैं क्या बोला? वो प्रोसेसिंग होना है दिमाग में। द मोमेंट यू रीड क्वेश्चन प्रोसेस। एक क्या बढ़िया क्वेश्चन था, मैं बताता हूं, एक बढ़िया क्वेश्चन था। ये इधर था, एक इधर था, ये स्क्रीन ए है, ये स्क्रीन बी है। गोली मारा, जैसा ही स्क्रीन, the word was mentioned, you see the word, if you read the question carefully, this is third point, reading between the lines। तो क्वेश्चन पढ़ा बट वो पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं कर पा रहा है। that I remember that question में it was written, the bullet hits the screen horizontally, that word was there horizontally। अभी तू पूछेगा अरे ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली मारा, ऐसा मारा, बॉस नहीं, उसका एक सिग्निफिकेंस था। सिग्निफिकेंस क्या? द बुलेट हिट्स द स्क्रीन ए हॉरिजॉन्टली एंड देन इट फॉल्स एंड हिट्स हियर एंड इधर से पास होगा ऐसा। फर्स्ट बच्चा को यही नहीं समझ में आया करके साला बुलेट नीचे क्यों गया? भाई उसका ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रहा है तो वो नीचे गया ना। और क्वेश्चन में दिया, इट वाज गिवन दैट इज 100 मीटर एंड क्वेश्चन में ये भी दिया था कि ये और ये की दूरी 10 मीटर है और टाइम पूछा गया था। बॉस द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल वाज, अगर एक बुलेट हॉरिजॉन्टली पास हुआ इट मींस उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई पार्ट इज 0, वो हिट करना चाहिए था ना। देख वेलोसिटी इन द वाई पार्ट इज 0, इधर तेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल गया, वेलोसिटी इन द वाई पार्ट इज 0, डिस्प्लेसमेंट 10, हाफ g10, टाइम आ गया। करेक्ट ना? अच्छा ठीक है, वो वर्टिकल रेंज में ठीक है, जो भी आगे कैलकुलेशन करना, बट थॉट कैसे देना है? वो वर्ड हॉरिजॉन्टली था। अब बच्चा उस पर ध्यान ही नहीं देता है। समझा चुका किधर? हाँ, हाइट नहीं दिया होगा, रेंज कुछ तो दिया था, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट क्वेश्चन। समझ रहा है ना? थर्ड प्रॉब्लम, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। लर्न टू रियलाइज the importance of those particular words which are present, उसमें बच्चा छूटता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे लिए ये टॉप प्रायोरिटी में है। द मोमेंट यू रीड द इंग्लिश योर ब्रेन शुड स्टार्ट इंटरप्रिटिंग इट। फर्स्ट थिंग, डायग्राम कैसे आएगा? नेक्स्ट, द रिलेटेड क्वेश्चन और द रिलेटेड कंसेप्ट्स, what all formulas are involved, that brain should start। ये तुम्हारा जैसे कंप्यूटर चालू करता है, विंडोज आएगा, टुन 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 आएगा, उसका एक प्रोसेसिंग है ना, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में प्रोसेसिंग है। और बच्चे का हैबिट है, आई बराबर पहले 2-3 बार रिफ्रेश करेगा, 2 मिनट नहीं, जनरल कंसेप्ट। तो एक क्या, एक प्रोग्रामिंग की जैसा तू चल रहा है, एक मेंटालिटी प्रोसेस है। मैं चाहता हूं हर प्रॉब्लम के लिए तुम एक थॉट प्रोसेस डेवलप करो, कैसे सोचना है। मेरे लिए क्वेश्चन रीड करने पर फर्स्ट थिंग इमेजिनेशन आना है, ऐसा होता है, ऐसा, हाउ इट विल बी द डायग्राम, व्हाट इट विल लुक। सेकंड थिंग, बिफोर यू स्टार्ट द सॉल्यूशन प्लीज हैव स्पेयर सम टाइम मतलब हार्डली 5 to 6 seconds looking the options। Why have a look over the options? Because you will come to know what is the requirement. Whether, example, every time they will not give you a numerical value in physics, they will give you in some language 4 times h height, 8 times range। So the moment you glance after reading the question, the moment you glance, ये प्रोग्रामिंग बना दो तुम्हारे थॉट प्रोसेस का। क्वेश्चन रीड करने पर स्टेप 1 मैं इमेजिनेशन बनाऊंगा, या स्टेप 1 मैं फर्स्ट 5 सेकेंड्स ऑप्शंस को स्पेयर करूंगा।
देखूंगा कि क्या है. आई स्पेयर टाइम टू हैव अ लुक ओवर द ऑप्शंस कि आंसर कौन से भाषा में चाहिए. सेकेंड पॉइंट, एक इमेजिनेशन आना है कि क्या होता होगा. एक रफ स्केच दिमाग के अंदर क्रिएट होना ही है. थर्ड पॉइंट, द कंसेप्ट रिलेटेड फॉर्मूला अगर इन्वॉल्व है तो वो सोचो. ये थर्ड प्रॉब्लम का अप्रोच बोल रहा हूं. फोर्थ पॉइंट, वंस यू एनालाइज इट प्रॉपरली, दो केस होगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा. बट तुझे रफ एक आधा मिनट जाएगा भी, या आधा मिनट या 20-30 सेकंड जाएगा भी, तो तुझे रियलाइज होगा कि यार ये बन नहीं आ रहा है या ज्यादा टाइम लेने वाला है. या तो यू विल बी वेरी क्लियर दैट ये आने वाला ही नहीं मेरे को, या तो बनेगा बट टाइम लेगा. तो कितना टाइम लेगा. स्टेप 4, कितना टाइम लेगा. अगर वो 1 मिनट में करता है, 2 मिनट के अंदर होता है, सॉल्व कर ले तभी का तभी. गणित, तुझे रफ आइडिया आ जाता है कि गणित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो तभी कर ले. अगर तुझे लगा, कल मैसेज किए बच्चों ने, सर 45 क्वेश्चन देने पर 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, गधे, अप्रोच ही गलत है. कौन बोला था एक प्रॉब्लम के ऊपर आप इतना टाइम डालने के लिए. गधे, अलग गलत है. तुम्हारा दिशा ऑफ प्रिपेयरिंग एंड दिशा ऑफ सॉल्विंग, एटीट्यूड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज रॉन्ग. भाई नीट डिमांड करता है 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स, और तुम एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है. ठीक है, बच्चा बायोलॉजी के साथ और केमिस्ट्री के साथ एडजस्टमेंट मारता है, एंड वो करेगा, इसमें फिजिक्स को ज्यादा टाइम डालेगा एडजस्टमेंट में डाल के, और कर लेगा वो 45 मिनट्स का. 1 घंटा 10 मिनट, 45 क्वेश्चन को 70 मिनट पकड़ बॉस, तो भी एटीट्यूड तो 2 मिनट के कम से करना ही पड़ेगा ना. एक क्वेश्चन 2 मिनट के कम से रीड करना, पढ़ना, सॉल्व करना, एनालाइज करना, अगर प्रॉब्लम है तो मार्क करना. बॉस टाइम तो जाता है ना. टॉप प्रायोरिटी में नीट एग्जाम डिमांड्स इंस्टेंट रिकॉलिंग ऑफ द डेटा. इंस्टेंट रिकॉलिंग ऑफ द डेटा. क्वेश्चन पढ़ने पर ऐसा ट्रिगर होना है, बोलता देयर शुड बी ट्रिगरिंग पॉइंट इनसाइड यू द मोमेंट यू रीड बॉडी प्रोजेक्टेड. प्रोजेक्शन आया, प्रोजेक्शन नेक्स्ट टाइम रेंज, ऐसा, हाँ रेंज का फॉर्मूला क्या है, वो दिमाग में वो दिखाते ना, पिक्चर में दिखाते ऐसा, नंबर्स चलते रहते आगे पीछे, जैसा तेरा ब्रेन के अंदर चलना है वो उस लेवल तक इंटेलेक्चुअल लेवल. सर ये एक दिन का खेल नहीं है बॉस, पॉसिबल ही नहीं है एक दिन का खेल बॉस, ये महीनों का खेल है, महीनों का. इसीलिए हम क्या करते, टेस्ट लेते तो 45 क्वेश्चन को पहले 1.5 आवर देते, 2 घंटा लो. धीरे 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 टाइम की कटौती करते हैं, कटिंग. इनिशियल तुमको टाइम देंगे, तुमको विचारधारा तुम्हारे चलने देंगे, धीरे धीरे तुमको टाइम का रियलाइजेशन देंगे. मिस्टेक्स होगा, 100% मिस्टेक हो, दैट इज द लर्निंग पॉइंट. फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ा, ऐसा चला, पढ़ा, रीड किया, एंड ट्रस्ट मी, नीट के क्वेश्चंस में ज्यादा लंबे कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आते. एंड पर्पसली एक मेरे को बेसिक प्रॉब्लम, मेरे को जो बच्चों बोलते हैं, सर वो पहले 5 क्वेश्चन टफ थे सर, सारा कॉन्फिडेंस गिर गया, साला पूरा सब हिल गया सब. मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था ना, मैं इंजीनियरिंग के एग्जाम्स लिखता था, तो पता नहीं मेरे तो ये एक्सपीरियंस था, मैं सच बोलने वाला कि मेरे को भी सीटी का तो इतना याद नहीं है. सीटी कि जब पेपर आने के पहले ना, पैर ऐसा पैर ऐसा होता था, अंग पूरा ठंड होता था, हाथ पूरे ठंड होते, पता नहीं तुमको ऐसा कभी हुआ, हैंड्स ठंड होते, और जैसे ही पेमेंट मिला 5-10 मिनट हो गया, मेरा एक्सपीरियंस कान पूरा गर्म हो जाता है. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कि कान पूरा ऐसा गर्म का सेंसेशन आता है. तो एग्जाम का एक फियर है. अभी तो बायोलॉजी में फिजिक्स वाले को बायोलॉजी का सवाल पूछेगा तो हमको मालूम नहीं है क्या होता है, बट हाँ सर होता है. लर्न करना पड़ेगा इमोशंस को कंट्रोल में लाने के लिए, नहीं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई. सब खेल इमोशंस का है. एग्जाम की वो 3 घंटे का बच्चा, मैं कितने माँ बाप को बोला है यार, माँ बाप रीजंस क्या क्या देते हैं मालूम है, बोला आई डोंट बाय ओनली सच रीजंस. उनके सामने हाँ बोल देते हैं, बट आई डोंट बाय, अंदर से माय इनर कॉन्शियस डजंट एक्सेप्ट इट. व्हाई? बोलता है सर बीमार पड़ गया था, बुखार था. भाई वॉर के लिए जा रहे हम, ये वॉर है, ये वॉर टाइम के साथ है, ये वॉर हमारा
टाइम के साथ है, और ये वॉर हमारा जीवन को चेंज अलग दिशा में लेके जाने का वॉर है। भले उसका आउटकम कुछ भी हो, भले उसका आउटकम कुछ भी हो, बट हमने जी तोड़ मेहनत करके वो 3 घंटा हमको डालना है। अगर गलत हुआ कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, बुज़दिल नहीं है। बट अगर एग्जाम के फियर से तो साला वॉर पे ही नहीं उतरा और वॉर के पहले ही हार जीत का निर्णय हो जाएगा, ये कितना गलत है। तो वॉर पे तो हम जाएंगे, भले मर जाएंगे, बट साले जाएंगे तो जाएंगे। और उसका आउटकम पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उसका आंसर आउटकम रिजल्ट का आउटकम पॉजिटिव या नेगेटिव हो, हम चीजों को पॉजिटिव ही लेंगे। नहीं क्रैक करने का एग्जाम, अगर एग्जाम नहीं क्रैक होता है तो भी जिंदगी खत्म नहीं होती है। तुम्हारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल बैठा है, तुम्हारे सामने बोलने वाला आदमी लाइव एग्जाम्पल बैठा है, न उसको पता था जेडब्ल्यू क्या होता है, न उसको पता था नीट क्या होता है। वो तो सीईटी का बच्चा है जिसने हार्डली दिसंबर में चालू किया प्रिपरेशन और जून या मई में एग्जाम लिखा था। पहली टाइम जीवन में देखा कि सीईटी क्या होता है, वो भी 5 महीने पहले की बात बता रहा हूं। 5 महीने के बाद एग्जाम है और आज पता लगा भाई सीईटी भी ऐसा होता है जिसमें ऐसा 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स कर्नाटका में लिखना पड़ता है, वो तभी पता। और जब हम कर पाए तो तुम तो बहुत बेहतरीन। और जब आज हम फाइनली, मेरे लिए लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट अबाउट स्टडीज। द होल प्रोसेस ऑफ ऑल दिस, रैंक चाहिए बॉस, रैंक चाहिए, बट द होल प्रोसेस इज नॉट फॉर रैंक। द होल प्रोसेस इज टू क्रिएट दैट इनर एक्साइटमेंट, इनर ड्राइव, टू गिव दैट fulfillment of understanding the subject and grow you strong mentally so that you allow your thoughts to expand. Trust me, I being not great in physics, I don't know, I told you or no, I remember my days. PU1 day का फाइनल एग्जाम, 11th स्टैंडर्ड का PU फिजिक्स का थ्योरी का पेपर, इधर ही बगल में भगवान के सामने मैं रो रहा था, भगवान पास कर देना, भगवान पास कर देना। और जाके मेरे को मिला 92 के 94 फिजिक्स में, PUC1 में। ये क्या है? इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होना। मुझे पता था, मैंने प्रिपेयर किया है, बट इनर का डर ने इतना मार दिया और जाने के पहले ही मैं बुज़दिल बन गया था और किसी एक एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेने गया। भगवान कुछ नहीं करता है, जो तूने प्रिपेयर किया वही करता है। भगवान वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां के पॉजिटिविटी तू खुद को साइकोलॉजिकली क्रिएट करवाता है। भगवान का कोई रोल नहीं है, जो तूने प्रिपेयर किया वो एक हमारी क्या बोली, भगवान ऐसे ये तू लिख रहा है, भगवान ऐसे नॉलेज फेंक रहा है, ऐसे भगवान दे रहा है, हाफ फ्लो हो रहा है, नॉनसेंस, कभी नहीं होगा। तो प्लीज लर्न टू कंट्रोल इमोशंस एंड trust me, even if things are going bad, it is the initial day because we have just started with the preparation. Next, what is becoming a big hurdle to you is, I told you, disciplined approach नहीं है। मैं बोला दिन के 20 बोला ना, मैं 20 नहीं इनिशियली। भाई मेरे पे दया खा के सालो 10 प्रॉब्लम तो दिन के सॉल्व करो, बस 10 प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट वो 10 प्रॉब्लम एकदम ढंग का होना चाहिए। ढंग का मतलब क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक एग्जांपल ये प्रॉब्लम, हाँ इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, हॉरिजॉन्टल है, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इज देयर, वाई एक्सिस में वेलोसिटी इज एब्सेंट। ये है कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके सॉल्व करना। 5 प्रॉब्लम कर दिन के बॉस, 5 प्रॉब्लम कर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दिन ले ले, 50 प्रॉब्लम कर, एक चैप्टर के लिए स्पेंड कर। बट मेरे लिए मैं 10 प्रॉब्लम बोल रहा हूं, बट वहां पे डिपेंड ऑन वेटेज, डिपेंड ऑन चैप्टर, दैट ऑल विल वेरी। बट इनिशियली तो स्टार्ट कर रहा है, 11 के दिनों की बात करता हूं, तो प्लीज डिसिप्लिन के लिए दिन का 5 से 10 करूंगा ही, उसके पहले सोऊंगा नहीं। सोने के पहले, ये भी मेरे वन ऑफ द टॉप लिस्ट में आता है, कैलकुलेशंस। मैं लिख के दे रहा हूं, नीट का बच्चा स्पेशली बॉय और गर्ल स्ट्रगल करता है गणित में। गणित का खेल में बहुत टाइम जाता है, ये तुमने भी थोड़े टाइम में एक्सपीरियंस किया। मेरे लिए गणित को इजी बनाने का खेल, मैं एक अलग सेशन लेने वाला हूं, 5 days ओनली टू हाउ टू प्ले विद गणित। मैं आई एम शेड्यूलिंग, आई एम प्रिपेयरिंग कंटेंट ऑल्सो, कि जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ हम सॉल्व कर पा रहे, मेरे नॉलेज से मैं लूंगा अलग सेशन, गणित को कैसा खेलना है। बिकॉज ये जान दे,
कल तू एमबीए करेगा, कल तू लॉयर बनेगा, कल तू गवर्नमेंट के एग्जाम्स लिखेगा, सब जगह एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, टाइम का बाउंड है, कंस्ट्रेन है, पाबंदी है, उतने में हमको खत्म करना ही है पेपर, और उसमें गणित का टेस्टिंग जोन है। हर हर इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड यू टेंड टू चूज, मैक्सिमम प्लेसेस में गणित आएगा, एक्सेप्ट प्योर बायोलॉजी पकड़ेगा तो रिलेटेड लाइक मास्टरी में उसमें जाएगा, उसमें थोड़ा नहीं आएगा। मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी उसको टैकल करने के लिए सोने के पहले टेबल्स करना है, 20 तक करना ही है। सर तुम है ना सालों इंस्टा पे स्नैपचैट पे डाल सकते हो। हाँ, मैं तो अभी आजकल स्नैपचैट में आए, सेकेंड ईयर के बच्चों ने खोल के दिया, सर आओ स्नैपचैट पे देखो तुम्हारे बच्चे क्या क्या करते हैं, मालूम पड़ता है, रंग लाएगा। साल तुम विश्वास करते हो तुम्हारे बच्चे एकदम वो तो एक लाख बच्चा सत्य हरिश्चंद्र तो दूसरी सती सावित्री है, वैसा नहीं है आप जो समझते हो, ऐसा नहीं है आप जो समझते हो। आपके बैकग्राउंड में क्या क्या होता है खेल देखना चाहते हैं, आओ स्नैपचैट पे देखोगे। अज्यूमिंग वो स्ट्रिंग्स फॉलो करने के लिए वो भेजेंगे ही भेजेंगे, जो आपको ढूंढ के आपको नहीं भेजेंगे तो वो बात अलग है, बट आप आओ, जो भेजेगा वो भेजेगा, आपको पता चलेगा साला बच्चा क्या करता है। सालो मैं मना नहीं हूं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बैलेंस करो चलेगा, बट यार जब उसके लिए कर सकता है जो कि वो तेरा पेट भरने वाला नहीं है, तो साले अगर इसका रिजल्ट डिफरेंस ला सकता है तो 5 मिनट टेबल का ग्लैंस करके नहीं सोच सकता, वो भी कितना 12 तक तो सबको आता है मुंह पे मैक्सिमम, 13 से 19 का स्ट्रगल है भाई। इट इज अ गेम चेंजर, ट्रस्ट मी, टेबल्स बिकम्स अ गेम चेंजर इन कैलकुलेशंस, ट्रस्ट। व्हेन आई विल टीच यू कैलकुलेशन, सी only basic knowledge of 13 to 19 is a game changer for calculation and squares and removing the roots का भी लॉजिक मैं ले लूंगा, उसके लिए भी क्लास अलग से, ट्रिक फटाफट ट्रिक्स, उसका एक अलग सेशन लेंगे। तो मेरे लिए प्रायोरिटीज में क्या क्या है, टाइम हुआ अभी आया टाइम, मेरे लिए प्रायोरिटी में टेबल्स, मैथमेटिक्स बेसिक, सोने के पहले 10-15 मिनट, 10-15 मिनट में ज्यादा बोला, 5 मिनट स्क्वायर्स लेके सोना, जो चैप्टर चल रहा है उसका फॉर्मूला करना ही करना है, और उसके बैकग्राउंड में जो भी रिवीजन है वो शेड्यूल में। तो एक टाइम टेबल बना लेना, दिन का आधा घंटा सोने के पहले, बाद में गेम खेलता है क्या तो भी कर, गेम खेलता है, आज वो क्या है वैलोरेंट, हाँ वो मेरे को तो मालूम नहीं है, बट वो आशना बोल के गई, सर मैं खुश और वैलोरेंट खेल रही है सर, ऐसा बोल के। मैं बोला लेता हूँ 5 में सालों को सबको वैलोरेंट खेला, सर आप भी आओ अमंग अस खेलेंगे, हाँ तो ऐसा। मैं बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लेवल तक गिर जाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए लेवल तक चढ़ो ना कभी, तो उतना तो दया खाओ कि साला सर लोकल लैंग्वेज पे उतर रहा है हमारे लेवल तक, तो सर के लिए हम इंटेलेक्चुअल लेवल तक नहीं चढ़ेंगे इधर, थोड़ा वो भी सोचो हमारे बारे में। हाँ अब तो बेचारा पबजी बैन हो गया ना, पबजी तो बैन हो गया, ये अभी भी एडजस्टमेंट में चल रहा है इधर उधर। मेरे को मजा क्या हुआ, बच्चा वो सर आपके पास कैम 1992 है, मैं बोला हाँ, मैं तो मार्केट का आदमी है, मेरे पास रहेगा, मैं बोला भेजता हूँ तेरे को, तो क्या हुआ, वो एप्पल खोला, मैं तो गरीब आदमी भाई, एप्पल नहीं है, बोले सर एप्पल है भाई, मेरे सरने में हेड्डा और जमनानी नहीं है एप्पल या राजपुर नहीं है कि मैं एप्पल यूज करूं। पॉइंट क्या है, मैं बोला मेरे पास शेयरमी है, तो वो क्या बोला मेरे को, सर मेरे पास शेयरमी नहीं है, नहीं शेयर करके और एक आया है कुछ, नहीं एयर ड्रॉप नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो, नहीं शेयर मी करके था, शेयर आपला करके कुछ है, शेयर मी सर बाहर का है, शेयर आपला इंडिया का बोलते हैं क्या नहीं था, वो मेरे को दिखाया कि जब मेरा पॉइंट क्या, उसमें सब दिमाग चलता है बॉस, एक फॉर्मूला तुमको बेसिक रिवाइज करके उसमें दिमाग नहीं चलता है तुम्हारा, ये कहाँ का जस्टिस है बॉस, और वो तो क्या पेट भरने वाला नहीं है, एटलीस्ट ये एक लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है, तो क्यों नहीं उसके लिए, मेरा पॉइंट वो है, करो सब बैलेंस करो, हाफ एन आवर शेड्यूल में रिवीजन को रखो। तो 4 पॉइंट्स में सम अप करता हूं। फर्स्ट, सोने के पहले मेरे फिजिक्स के लिए इनिशियल डेज में 5 से 10 प्रॉब्लम कंटेंट वाला निकालना, कंटेंट वाला प्रॉब्लम जिसमें
पढ़ने पर खत्म नहीं हुआ सोल्यूशन, उसके ऊपर सोच विचार विमर्श करेगा, क्या है, ऐसा किया तो क्या, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट, सॉल्व करते टाइम वो सॉल्व कैसा करना है वो भी मैं स्टेप्स बताया, इमेजिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट्स, ये तुम्हारा ऑप्शंस व्यूइंग। नेक्स्ट अप्रोच 5-10 प्रॉब्लम ले निकालना, रिवीजन करना फॉर्मूलेस के। नेक्स्ट टेबल स्क्वायर, थोड़ा सा गणित पे काम करना। ये सब मिला 15 मिनट मेरा थ्योरी पढ़ लेना, 15 मिनट मेरे प्रॉब्लम जो सॉल्व किए वो एक बार ग्लैंस कर लेना। 1 घंटा 24 में से मेरा 1 घंटा फिजिक्स का, या एक आधा घंटा आएगा बस। और एक बात, बच्चों ने बिना प्रैक्टिस के पेपर लिखा तो फटना ही फटना है सबका। मैं रिपीटेडली बोला, अगर एक चैप्टर का कॉम्पिटिटिव टेस्ट लिखना है, बिफोर दैट, प्रायर टू दैट, you at least need to spend 200 problems on that, related to that chapter. Then only you think that you can do, otherwise result out. And after doing all this also, what is important is everyday का consistency for next 2 years. वो बच्चा आज साला सर ने डाला, पीछे आग लगी है, साला आज तो करेगा, 2 दिन हुआ बस, और सुतली बॉम्ब जगह फुटता फुटाश नहीं साला, वैसा नहीं चाहिए सर। सब फॉलो करने के बाद शेड्यूल में डिसिप्लिन और परसिवरेंस फॉर अ लॉन्गर टाइम इज नॉट देयर, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे एक भी एंजॉयमेंट के खिलाफ नहीं हूं, करो, बट मेरा 1 घंटा निकाल के रिस्पेक्टिव, हर एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का स्पेयर करके करो, तुम सब करो, एंजॉयमेंट करो, बट धीरे धीरे आने वाले 1 साल के लिए चीजों को करटेल करते जाओ तो तुम्हारा अच्छा होगा। और मैं थोड़ी जो मांग रहा हूं, बोला था ना सुभाष चंद्र बोस ने, नहीं बोला था ना, सुभाष चंद्र बोस साहब ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। मैं बोल रहा हूं तुम मुझे 2 साल दो, मैं तुमको जेई नीट दूंगा। 2 साल दो, 2 साल भी नहीं बचे अभी तो बॉस, नवंबर चल रहा है। हाँ, हार्डली जेई वाला बच्चा तो जैन सेशन में लिखता है, वो तो 1 साल 2 महीने 3 महीने बचे, हो गया बॉस, हो गया, खत्म, खेल खत्म है उधर ही। वो उतना ही मांग रहा हूं, अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो। ये एज में तू समझ गया इधर उधर की बातें और क्या बोलूं, सुंदर कन्या में इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा सा वो सब एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर्स, वो सब जो भी है, तो जो बट ये हमारे लिए क्या करना है, किधर एनर्जी डालना है, उधर स्पेंड करो, अच्छा होगा। सो बेसिक ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करो। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना और एक थॉट प्रोसेस कैसा डेवलप करना, उसके लिए जो ये टेस्ट का पेपर हुआ, उस टेस्ट के पेपर के मैं क्वेश्चंस लेता हूं, और क्वेश्चन लिख के सॉल्व के करने के पहले आई विल गिव यू अ थॉट हाउ टू थिंक एंड देन वी विल सॉल्व, सो दैट हाँ सर बोलो, व्हेन आई विल डू दैट देन यू साला ऐसा तो सोचा ही नहीं था, करेक्ट ना? दैट वे वी विल गिव अ थॉट प्रोसेस, ओके? सो वी विल टेक एवरी प्रॉब्लम दैट वे, ओके? वी हॉल्ड फॉर टुडे, we'll see you in the next class. That's all for today. Done.